My dear friends, most welcome to Geocentric. You are here with Ashutosh. Today we will talk about the major strategies and programs of 5 plans towards regional development of India. So before this, we already have talked about a lot of theories and concepts regarding regional development, regional planning, and then after we have seen that how the chronology and objectives of 5 plans in India have been set up. And then we also discussed about regionalization and major agroclimatic regions of India. And now in this video, we will continue our 5 plans journey of India. And in this, we will directly talk about the major strategies, major approaches, okay, what have been taken by the Planning Commission for reducing the imbalances of India, and therefore we will also deal with some major programs, particularly rural development or agricultural development programs in this context. Okay, so let's start, dear friends. We will deal with several approaches, several strategies, and in this I just want to say you that we will talk about few major strategies, like we will start with community development, okay, strategy of regional development. Then we will deal about the sectoral development strategy, followed by metropolitan development strategy, and then integrated rural development program strategy, intensive agriculture development program strategy, and then employment guarantee program strategy, followed by housing strategy or regional strategy, that is agroclimatic regional strategy of agriculture development or regional development, and then watershed development strategy. Okay, and then after 8th plan, the major strategies whatever were there, we will talk about those like LPG, liberalization, privatization, globalization, means economic reform strategy, and then social justice and equity strategy, followed by growth or inclusive strategy and sustainable development strategy. So let's discuss one by one. We will deal with one by one of all these major strategies and programs as well. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब पहला स्ट्रैटेजी जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने फर्स्ट 5 प्लान 1951 टू 56 में अडॉप्ट किया था, एंड दैट वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. You just remember it that first 5 plan, okay, focused on agricultural development and community development. Okay, आपको मैं बता दूं जो इस दौरान ही फर्स्ट 5 प्लान के दौरान ही इंडिया में कई सारे कम्युनिटी ब्लॉक्स, सीडी डेवलपमेंट, ओके, सीडी ब्लॉक्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो इसलिए हुआ था ताकि माइक्रो लेवल पे जो प्लान की जाए, ओके, रिसोर्सेज की एंड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके और फिर उनकी सुटेबल प्लानिंग्स के थ्रू माइक्रो लेवल रीजन्स को डेवलप किया जाए. मीन्स कम्युनिटी बेस्ड जो रीजन था उनका डेवलपमेंट हो, कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट हो माइक्रो लेवल पे, और इसलिए कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच को अडॉप्ट किया गया. दैट वाज नो डाउट अ वेरी appropriate model for India. Okay, but you can say that due to lack of resources and lack of skilled workers and poor implementation, okay, community development program were unable to give its maximum result. Okay, तो बात आती है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इस तरह से जो है इंडिया में आज भी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे आप जाएंगे तो जो ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसके की हेड होते हैं कौन, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. ओके, जो कि सेंट्रल लेवल के स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को वहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के रिसोर्सेज को, ओके, मीन्स डेवलप करने में अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हेल्प करते हैं. ओके, तो यहाँ जो है फर्स्ट इस तरह से फर्स्ट 5 प्लान में जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई वो थी कम्युनिटी डेवलपमेंट, और साथ ही साथ जो सेक्टरल डेवलपमेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर जो मैंने कहा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे फोकस किया गया था, इसके लिए कई सारे जो है आपके मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लाए गए, लाइक कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन का गठन हुआ,
और दामोदर वैली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च हुआ इंडिया में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, और यू कैन से दैट इट वाज अ सिमिलर मॉडल विच वर अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए, जो टेनेसी रिवर वैली अथॉरिटी के तर्ज पर ही इंडिया में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन उसमें भी कई सारी खामियां थी जिसकी वजह से काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा। जिस तरह से टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए, वैसा इंडिया के लिए नहीं रहा। इसके साथ ही लाइक कि हीराकुंड प्रोजेक्ट, देन भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ऐसे कई सारे जो है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए इंडिया में फॉर रीजनल डेवलपमेंट, ओके, मीन्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं दैट वाज नॉट अ प्रॉपर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट अप्रोच, ओके, बिकॉज इट वाज अ सेक्टरल अप्रोच। एक पर्टिकुलर सेक्टर तक इसका इन्फ्लुएंस बेस्ड था, एक पर्टिकुलर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पर बल दिया गया, ओके। अदर जो सोशल सेक्टर्स थे उस पे जो है कम उन्हें सिग्निफिकेंटली लिया गया, उन पे कम एम्फेसाइज किया गया, और इसलिए वी कांट से that model, that strategy was very much suitable in Indian context at that time, okay? क्योंकि इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एक सबसे बड़ी जो चैलेंज थी इंडिया के लिए वो थी रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन, ओके। देन सेकंड जो हमने कहा सेक्टरल मॉडल के बाद, सेक्टरल स्ट्रैटेजी के बाद जो इंडिया में यही स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रही कहाँ, तो सेकेंड 5 प्लान में। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ एक अनदर सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी इस पे बेस्ट रहा ये। यहाँ मैंने फिर से बता दूँ आपको, जो ग्रोथ पुल स्ट्रैटेजी या पीसी महालनोबिस स्ट्रैटेजी मॉडल को अडॉप्ट किया गया। फर्स्ट में हैरोल्ड डॉमर मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। दैन सेकंड प्लान में 1956 to 61 के प्लान में जो पीसी महालनोबिस मॉडल को, दैट वाज अ सेंट्रलाइज्ड मॉडल, जो कि एक सेंट्रल रीजन में जो है या फिर कुछ पॉकेट्स में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की गई जिसमें, और लेकिन वह भी सक्सेसफुल नहीं रहा बहुत हद तक, और कहीं ना कहीं उसकी क्रिटिसाइज जो उसे किया गया इस बेस पे दैट प्लान वाज अ sectoral model, okay, based on sectoral model, and hence we can't think for a holistic development of India, okay, with the help of that particular model, okay, because India we are having means a holistic development at that time, and even in this time as well, okay, all sectors are in dilapidated condition, so we can't emphasize in any single sector, okay, we need an integrated approach, a regional approach for India's development, okay, लेकिन ऐसा सेकेंड 5 प्लान तक नहीं मिला। तो रीजनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, प्रोस्पेक्ट में अगर देखें, तो इंडिया जो है थर्ड 5 प्लान में एक आप कह सकते हैं जो बहुत ही जो है एक होप सा दिखा, ओके, विद जस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ओके। थर्ड 5 प्लान में जो इंडिया ने मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लागू किया रीजनल इम्बैलेंसेस को कम करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ फिर से एक बार बता दूँ, जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है क्या, इसके तहत दिल्ली, मुंबई, ओके, चेन्नई, कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज़ के डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज किया गया, इन्वेस्टमेंट इन सिटीज़ पे की गई, सो दैट इट कैन बिकम अ ग्रोथ पोल, इट कैन बिकम द हब ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। बट व्हाट it did, it created an adverse condition, okay, effect। वो कैसे? क्योंकि it just attracted the population of people from the rural areas and therefore it increased the regional inequalities further, okay। तो जिस होप से हमने इस अप्रोच को लागू किया था, ओके, प्लानिंग कमीशन ने इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया था, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, रिमेंबर इट, this strategy was adopted in third 5 plan, okay, means 1961 to 66, okay। और आपको पता है उस टाइम में मैंने ऑलरेडी ही बता चुका हूँ, जो कई सारे जो है क्राइसिस आए, कई सारे प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करने पड़े, मीन्स इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, दैन अ सीवर ड्रॉट कंडीशन। तो ये कई सारे जो है आपके सिचुएशंस थे, कंडीशंस थे, जो जिसके नाते जो है इंडिया की जो 5 प्लान थी वो फेल्योर, दी मोस्ट फेल्योर प्लान रही थर्ड 5 प्लान, और उसके पीछे ये सारे रीजन्स थे, ओके ओके। देन आफ्टर जो मानसून हमारा वीक था, इसलिए ड्रॉट कंडीशन जो है उसमें आप देख सकते हैं। तो इस दौरान भी जो है कुछ तो आपके मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट यहाँ भी कंटिन्यू रहा, ओके। जो
आयरन स्टील इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज जो है वह भी जो है कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किए गए। लाइक कि बोकारो की अगर हम बात करें प्लांट की, स्टील प्लांट की, तो वो थर्ड 5 प्लान में जो है इस्टेब्लिश किया गया। ओके, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं जो फिर स्ट्रैटेजी की, प्रॉपर स्ट्रैटेजी की, तो मैंने कहा जो एक रीजनल जो होप सा दिखा इसमें, क्योंकि जो है मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इज एन स्ट्रैटेजी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। ओके, बट what happened, it increased the migration, okay, out migration from rural areas, and therefore it increased the regional imbalances as well, and that's why this model didn't prove an appropriate or suitable model for India। okay, उसके बाद देखिए रीजनल डेवलपमेंट के स्टेप में, मीन्स फेज में, हम एक और स्टेप जब आगे बढ़ते हैं और आते हैं 4th 5 प्लान में। मीन्स 4th 5 प्लान मैं आपको बताया था 3:2:2 का रेशियो। फर्स्ट 3 कंटिन्यूस प्लान्स चले, 5 प्लान्स 69 तक, 51 to 69। दैन जो है आपकी बात करते हैं यहाँ तो सॉरी 66 तक, एंड देन 66 to 69 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ 3 जो है आपके प्लानिंग हॉलीडेज okay रहे। मीन्स यू कैन से दैट 3 annual plans were there, और यू कैन से दैट 3 gaps were there, okay, after 3 5 plans, and then after 1969 से और 74 तक 4th 5 प्लान रहा। और इस प्लान में यू कैन से दैट फर्स्ट टाइम regional development strategy have been adopted clearly in this plan, means in 4th 5 plan for reducing the regional imbalances or inequalities। okay, तो यहाँ और किस तरह के स्ट्रैटेजी लिए गए? रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, एरिया डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, और यू कैन से दैट टारगेट एरिया डेवलपमेंट और टारगेट ग्रुप डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हैव बीन अडॉप्टेड हियर इन दिस प्लान, मीन्स 4th प्लान। okay, a lot of strategies have been formulated to solve the regional means problems, to reduce the regional gaps or imbalances in this plan। okay, lot of area development approach, like drought prone area development approach, then after hill area development approach, then after means desert area development approach। okay, so these kind, and then tribal area development approach, so these kind of target area or target group development approach have been adopted here। but remember it means during the 4th plan the planners have talked about this approach for regional development, but the proper implementation of these developmental approach have been okay taken in only in 5th 5 plans। okay, तो 5th 5 प्लान में इन सारे जो हमने कहा जो एरिया डेवलपमेंट अप्रोच को जो अडॉप्ट किया 4th 5 प्लान में, उनके बेसिस पे कई सारे प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट किया गया, लेकिन इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वो 5th 5 प्लान में हुआ। ओके, टू रिड्यूस द पॉवर्टी, टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट लेवल, एंड देयरफॉर टू रिड्यूस द रीजनल गैप्स। ओके, तो इस पे हम फिर बात करते हैं एक एक करके। जो अब देखिए तो 4th 5 प्लान से आप क्लियर कट आपको देखने को मिल जाएगा किस तरह से रीजनल डेवलपमेंट अप्रोच मीन्स एरिया डेवलपमेंट अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया गया प्लानिंग कमीशन के थ्रू इंडिया के रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए। ओके, और 5th 5 प्लान में वहीं हम फिर बात कर रहे हैं। 5th 5 प्लान कब से कब तक है? 5th 5 प्लान का पीरियड अगर हम बात करते हैं तो 74 टू 79 वैसे फेज है, बट आपको बता दूं एक बार फिर से कि 78 में ही जो है गवर्नमेंट जो है गिर गई थी, और फिर जो है जनता पार्टी का मीन्स गवर्नमेंट में आई, और फिर जो है जनता पार्टी ने यहाँ 5 प्लान्स को वहीं स्टॉप करके रोलिंग प्लान स्टार्ट किया। ओके, जिस वजह से आप जो है 4th 5 प्लान को आप कहाँ तक कंसीडर करेंगे? ओके, सॉरी 5th 5 प्लान को कहाँ तक कंसीडर करेंगे? 78 तक। सो 74 टू 78 यह जो फेज रहा इंडिया के लिए, वो आप कह सकते हैं एक तरफ हम इमरजेंसी के दौर से गुजर रहे थे, उससे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का फेज स्टार्ट हो चुका था इंडिया में, जिसके वजह से हम जो है सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम एक सेल्फ
जो डिपेंडेंसी हम कहीं ना कहीं गेन कर रहे थे ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, बट उसमें भी एक रीजनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन सर्टेन जो है पैचेज में, सर्टेन जो है आपके पॉकेट्स में वो इम्प्लीमेंट किया गया था, लाइक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। उसी तरह जो है साउथ इंडिया में हम बात करते हैं तो तमिलनाडु, आंध्रा के कुछ जो रीजन्स में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ भी जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसमें भी एक रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए थे, और इसके साथ ही साथ कई सारे साइड इफेक्ट्स ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी देखने को मिले थे, लाइक कि ओके सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल स्पेशली इन राजस्थान रीजन, क्योंकि जो इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू मीन्स जो आपका भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के थ्रू जो इंदिरा गांधी कैनाल जो है आपका फॉर्म किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, तो उसका मेन पर्पस क्या था, जो डेजर्ट रीजन या सब डेजर्ट रीजन जो है आपका सेमी डेजर्ट रीजन, उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इंक्रीज करना। लेकिन जो इरिगेशन, कंटिन्यूस इरिगेशन की वजह से वहाँ एक सैलिनाइजेशन का जो है आपका मिस के प्रोसेस से वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये एक तरह से जो है आपका वहाँ की इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए एक जो वहाँ उस पर एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करने लगा, एंड दैट्स वाई इट रिजल्टेड इनटू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्पेशली ऑफ डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन। तो इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स जो है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन के देखने को मिलते हैं, और रीजनल इम्बैलेंसेज भी ग्रीन रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज में बढ़ाया, और फिर हम अगर पाएंगे तो सेकंड फेज में मीन्स वही 1990 के बाद फिर से जो है कई सारे जो है मीन्स और रीजन्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो है डिफरेंटली उसे इम्प्लीमेंट किया गया, और कुछ सेक्टर्स को उसमें बढ़ाया गया। फूड ग्रेन्स के अलावा कैश क्रॉपिंग पे, और जो है आपके लाइक कि कॉमर्शियल लाइव स्टॉक फार्मिंग, और जो है आपके फिशरीज, देन पोल्ट्री, डेयरी, ऐसे कई सारे सेक्टर्स को उसमें जो है इंक्लूड किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन में, सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रहा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं जो ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान में जब इंदिरा गांधी जो है गवर्नमेंट एक बार फिर से वापस आई, और फिफ्थ 5 ईयर प्लान जब हम बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान मीन्स बिफोर जनता पार्टी जो अगर हम बात करें तो 74 to 78। नाउ सी हियर वंस अगेन एरिया डेवलपमेंट अप्रोच बिकम कंटिन्यूड, क्योंकि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान में बात की गई थी एरिया डेवलपमेंट अप्रोच की, उसी को फिर इम्प्लीमेंट किया गया फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन ऑफ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज व्हाट, पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ। और यह जो इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, इसी को लेकर गवर्नमेंट आई भी थी इंदिरा गांधी की, और इसको लेकर फिर कई सारे स्टेप्स जो है इस तरह से मैंने जो बताया जो लिए गए, लाइक कि एक अप्रोच वहाँ पे यहाँ से जो स्टार्ट हुई वो थी क्या, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अप्रोच एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अप्रोच। तो ये दो अप्रोच जो थी वो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काफ़ी जो है आपके कारगर आप कह सकते हैं एट दैट टाइम वो थी। It was no doubt a very beautiful approach or a strategy, when we talk in terms of India, because it were having the ability to solve a multitude of problems. But unfortunately what happened, due to poor implementation and a mass level of corruption at every level, this program, this strategy was also failed. तो ये जो है आपके नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जो कौन कौन से मेजर रीजन्स रहे जो है प्रोग्राम से फेल होने का, लेकिन अभी तो हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में एक तरफ जहां एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के थ्रू सारी जो आपके मेजर जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे उनके डेवलपमेंट के लिए रिलेटेड प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया, लाइक कि एज आई सेड अर्लियर दैट ट्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव बीन लॉन्च्ड हियर इन फिफ्थ 5 ईयर प्लान। देन means desert development program have been launched here, hill area development program have been launched here, and tribal development program means tribal area development program have been launched or implemented in this means fifth 5 year plan. And in spite of all these, as I said that integrated rural development program मीन्स जो ये समन्वित ग्रामीण विकास जो परियोजना थी इसको भी लागू किया गया इसमें मीन्स फिफ्थ 5 ईयर प्लान में 1975-76 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में। और इसके साथ ही मैंने जो कहा और एक बात
कि इंटीग्रेटेड जो है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इन सभी को किया गया था ताकि इससे पहले जो रीजनल डेवलपमेंट के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए कई डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे थे, लाइक कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग प्रोग्राम, ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अलग प्रोग्राम, देन एजुकेशनल और जो है सोशल सेक्टर्स के लिए अलग प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है, जो उन सारे सेक्टर्स को के जो प्रोग्राम्स थे उनको एक साथ मर्ज करके और एक सिंगल जो है अप्रोच के साथ ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके किसी भी एरिया का, पर्टिकुलरली ऑफ रूरल रीजन्स। और इसलिए यहाँ जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, ओके, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल था और प्लानर्स जो है इसे लेट से स्टार्ट किए। यही स्ट्रैटेजी अगर फर्स्ट 5 प्लान से स्टार्ट होती तो आई थिंक दैट जो इंडिया की ग्रोथ रेट और ज़्यादा बढ़ी होती, ओके। बहरहाल अब हम बात करते हैं आफ्टर दिस, तो इसके अलावे जो है आपके जब 6th 5 प्लान में हम मूव करते हैं तो वहाँ पे ये सारे स्ट्रैटेजीज मीन्स इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट ये कंटिन्यू रहा, ओके। और इसके तहत जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स और स्ट्रैटेजी भी इंडिया में जो है वो लाया गया, ओके, अडॉप्ट किया गया प्लानिंग कमीशन के थ्रू टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओके, और रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके थ्रू लाइक कि जो आपके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ओके, NREP जिसे हम कहते हैं, देन रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो आपके भूमिहीन जो लोग थे, श्रमिक थे, तो उनके लिए जो आपके जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है चलाई गई थी। और ये फर्स्ट आप कह सकते हैं दैट मनरेगा का कहीं ना कहीं बेस वहाँ है, ओके, मनरेगा की नींव वहीं उसी में छुपी हुई है, जो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ओके, RLEGP, ओके। ये दोनों जो है आपका मीन्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये दोनों किस 5 प्लान में आए, 6th 5 प्लान, जो कि जिसकी ऑब्जेक्टिव थी टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, ओके, और एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन। तो इसके लिए जो है ये स्कीम्स जो है लाए गए और इसी के थ्रू रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के थ्रू ही 100 डेज का जो है आपका वो जॉब की गारंटी दी गई, ओके, किनको, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में से बिलोंग करते थे। और मैं आपको बताऊं उस टाइम में जब IRDP या फिर जो है NREP जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए, उस टाइम में इंडिया की पॉवर्टी लेवल जो कितनी थी, you can guess that more than 50% of India's population was belonging to below poverty line, okay। और इनका क्या टारगेट था, that to reduce the poverty level by 30% till 1990s, okay। तो यानी कि 1990 तक जो है पॉवर्टी लेवल, ये जो 50% से अधिक पुअर पीपल थे उनके लेवल को 30% तक रिड्यूस करना 1990 तक, ये टारगेट रखा गया था। कहीं ना कहीं IRDP की हो या फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो या फिर रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो, ये जो स्ट्रैटेजी लाई गई थी इंडिया से पॉवर्टी लेवल को रिड्यूस करना, पुअर पॉपुलेशन के जो रेशियो को वो कम करना था। तो क्या इस टारगेट को अचीव करने में सफल रहा या नहीं रहा, तो इसके तो हम बाद में फिर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना तो बता दूं, नहीं रहा। और नहीं रहने के पीछे का जो कारण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंबाइंडली उस पर हम डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट आर वेयर द मेजर रीजंस बिहाइंड द फेल्योरनेस ऑफ द प्रोग्राम्स, ओके। तो चलिए, तो एक बार फिर से हम बात करें तो ये सारे जो हैं आपके जो स्ट्रैटेजीज वो कंटिन्यू रहा, आगे भी इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता रहा। लाइक कि जब हम बात करते हैं 7th 5 प्लान की, ओके, तो 6th 5 प्लान के बाद जो जहाँ पे हमने देखा 80 to 85, 1980 से 85 तक 6th 5 प्लान रहा। और इस दौरान अगर हम बात करें तो कई सारे जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को भी अडॉप्ट किया गया, लाइक कि जो मीन्स वाटर पॉल्यूशन एक्ट हो या एयर पॉल्यूशन जो है एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट हो, ओके, इस तरह के एक्ट्स को जो है यहाँ कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में। मीन्स इंडिया को हम कह सकते हैं, इंडिया में उस टाइम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन को लेकर इंडिया स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट कर दी थी, ओके। और फिर
when we talk, yes, one more program was very important in this plan, that was minimum needs program. यह भी 6th 5 plan का एक बहुत ही important program है, minimum needs program। और इस strategy के थ्रू मिनिमम नीड्स मीन्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए, उससे अवेल करना इसका एक टारगेट था। लाइक कि बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए क्या है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द development of any region, either rural or urban, that are what? Electricity, road, transportation and communication, education, health, sanitation, nutrition. Okay, so these were these are the basic requirements for the development of any region. And the minimum needs programs, okay, targeted to achieve these requirements. Okay, तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो था, जो उसका लक्ष्य क्या था, तो क्षेत्रों में मीन्स ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, वहाँ जो है जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं डेवलपमेंट के लिए, ओके, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो या फिर जो है आपके यातायात के साधन हो, ओके, तो ऐसे, या फिर इरिगेशन हो, तो ऐसे जो है आपकी सारी जो आवश्यकताओं को की पूर्ति करना, उनका जो है विकास करना, यह लक्ष्य रखा गया था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के थ्रू। और इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था, स्ट्रैटेजी थी टुवर्ड्स रीजनल डेवलपमेंट। बट उसमें भी जो है कहीं ना कहीं ये अचीव तो किया टारगेट, लेकिन जो है अपने मैक्सिमम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाया। ओके, अब इसके बाद जब हम बात करते हैं 7th 5 प्लान की, तो 7th 5 प्लान का पीरियड आप जानते हैं 1985 टू आपका 90 का फेज है ये। और इसमें भी जो है ये प्लान अपने जो टारगेट ग्रोथ था उसे अचीव करने में ये सफल रहा। ओके, लेकिन बात आती है जो यहाँ कई तरह के जो है प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए, लाइक कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपका, ओके, देन जो आपका फॉरेन करेंसी से के शॉर्टेज से रिलेटेड, फॉरेक्स क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, उससे रिलेटेड। लेकिन इस दौरान जो स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट किया गया 7th प्लान के अकॉर्डिंग, वो काफ़ी जो है बेहतर स्ट्रैटेजीज थी, और कहीं ना कहीं रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है बहुत जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आप कह सकते हैं वो यहाँ अडॉप्ट किया गया। लाइक कि फॉर एन एग्जाम्पल, First time Indian Planning Commission in 1988 divided India into 15 agroclimatic regions, 15 agroclimatic zones for the regional development, for the overall regional development or for the reduction of regional gaps or inequalities. Okay, तो ये जो एक इनिशिएटिव थी, और we can say that it was or it can be said agroclimatic, okay, regional strategy। तो यह जो स्ट्रैटेजी थी वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर जो इम्बैलेंसेस थे, और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन से इम्बैलेंसेस जो है फॉर्म हुआ था, उसे दूर करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को जो है डिफरेंट रीजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड एग्रीकल्चरल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, प्लानिंग कमीशन डिमार्केटेड इंडिया इनटू 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। ओके, इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अगर हम इस फेज की बात करें तो वो क्या थी, 7th 5 प्लान की हम बात कर रहे हैं, तो वह थी आपकी नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह जो प्रोग्राम था मीन्स वाटर सेट डेवलपमेंट अप्रोच और स्ट्रैटेजी यू कैन से। तो वाटर सेट क्या होता है, पहले तो ये जान लेना जरूरी है। तो वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट बिफोर डिस्कसिंग दिस वी हैव टू नो अबाउट द वाटर सेट। व्हाट डू यू मीन विद वाटर सेट? तो जिस तरह से एक ट्री की का अपना एक कैचमेंट एरिया होता है, कैनोपी होता है, ओके, मीन्स जहाँ तक वो शेड प्रोवाइड करता है अर्थ पे, तो इसी तरह जो है हम किसी भी रिवर या किसी भी स्ट्रीम का अपना एक कैचमेंट एरिया होता है, जहाँ तक कि रन ऑफ को, सरफेस रन ऑफ को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ओके, तो उस पूरे जोन को हम एक वाटर सेट कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं द रीजन बिटवीन टू वाटर डिवाइड इज कॉल्ड वन वाटर सेट। मीन्स दो वाटर डिवाइड, मान लीजिए किसी भी रीजन में दो आपके जो है हिल रीजन्स हैं, और बीच का जो उसका एक रीजन होगा, तो क्या होगा, कभी भी बारिश होगी तो दोनों हिल के जो है दो साइड जो है पानी गिरेंगे, तो वन साइड जो है दोनों मीन्स एक हिल का राइट विंग, दूसरे हिल का लेफ्ट विंग, वहाँ के पानी कहाँ आके मिलेंगे, जो उसके बीच में जो कोई स्ट्रीम होगी उसमें। तो इन दोनों इस तरह से जो है, और उस मीन्स माउंटेनस रीजन को हम क्या कहेंगे, वाटर डिवाइड, क्योंकि वो
हमारे सरफेस रन ऑफ को दो भाग में बांट देता है, इसलिए हम उसको वाटर डिवाइड कहते हैं। ओके, इट डिवाइड द स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरी इनटू टू डिफरेंट सेक्शंस। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर सेट और वाटर डिवाइड। ओके, तो दो वाटर डिवाइड के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड वाटर सेट। और इस तरह से जो यह एक स्ट्रैटेजी लाई गई थी, जो एक वाटर सेट का हम एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करें, उसके लिए एक जो है स्पेसिफिक प्रोग्राम हम लॉन्च करें। ओके, एक स्ट्रैटेजी हम लॉन्च करें और उसके थ्रू जो है हम एक वाटर सेट का एक तरह के प्लान से, क्योंकि उसमें तो नो डाउट दैट वाटर सेट विल हैव द होमोजेनिटी अमॉन्ग फीचर्स। ओके, इसलिए जो है वहाँ पे एक तरह के प्लान से हम उस वाटर सेट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यह जो है वाटर सेट डेवलपमेंट अप्रोच बेसिकली था जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ओके, देन एफॉरेस्टेशन के लिए, देन जो आपका पावर जो है आपका यूटिलाइजेशन के लिए। तो कई सारे मल्टीपर्पसेस थे वाटर सेट के डेवलपमेंट के पीछे। ओके, तो यह अप्रोच भी 7th 5 प्लान में जो है इम्प्लीमेंट किया गया। साथ ही इस 5 प्लान की एक और ख़ास बात यह थी दैट जो 6th 5 प्लान की जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम थी, इन दोनों को मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना JRY इन 1989 वो बना दिया गया। तो कहने का मतलब है जवाहर रोजगार योजना क्या था, जस्ट आप कह सकते हैं इसके तहत जो है ये एक प्रोग्राम थी जहाँ पे दो प्रोग्राम को मर्ज करके इसे बनाया गया। और वो दो प्रोग्राम्स कौन कौन से थे जो 6th 5 प्लान में लॉन्च हुए थे? कौन कौन से? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ओके, तो इन दोनों को मर्ज करके जवाहर रोजगार प्रोग्राम बना दिया गया और फिर वहीं आगे कंटिन्यू रहा। और दूसरी तरफ जो है हम बात करें तो ये सारे जो है स्कीम्स जो हमने कहा, इसके अलावा इस 5 प्लान में 7th 5 प्लान में जो हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम के तौर पर जो है आपका मीन्स प्रोविजन ऑफ हाउसेज और ड्वेलिंग प्लेसेस टू द बैकवर्ड पॉपुलेशन और द एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द मीन्स ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, ओके, लाइक SC STs एंड ऑल दिस, तो उनके लिए जो है इंदिरा आवास योजना लाया गया। ओके, तो यह भी जो एक हाउसिंग स्ट्रैटेजी थी जो कि जो है जो पुअर पॉपुलेशन थी, जो एबल नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे हाउसेस को, तो उनके जो है आपके हाउसेस के लिए जो है गवर्नमेंट यहाँ पे जो इंदिरा आवास योजना लाई। ये योजना काफ़ी जो है आप कह सकते हैं जो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो है 100% इसने भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया। इसमें भी मास लेवल पे करप्शन जो है आपको देखने को मिल सकता है। डिफरेंट रिपोर्ट्स में जो है के थ्रू आप पा सकते हो कि किस तरह से किस हाइट पे जाके और इन सारे प्रोग्राम्स में करप्शन जो है कहीं ना कहीं जो है इन प्रोग्राम्स के फेल्योर के पीछे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहा। ओके, अब चलिए बात करते हैं इसके बाद के स्ट्रैटेजी की। मीन्स यहाँ के बाद जो है अच्छा, इसी दौरान जो है 1985-86 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू हुआ था। तो एक तरफ हम देख रहे हैं जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट किए जाने लगे इंडिया में। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द 8th प्लान स्ट्रैटेजी। अब चूंकि 8th प्लान जो 1992 से स्टार्ट होती है, यहाँ से एक सेकंड जनरेशन आप कह सकते हैं सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है इंडिया के डेवलपमेंट का। और यहाँ फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म 8th प्लान एंड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म हम कहते हैं 9th प्लान को। आप सभी को पता है जो इसमें क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था इंडिया का और LPG स्ट्रेटजी यहाँ अडॉप्ट हुई थी, मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। And with these strategies, okay, India tends towards the economic reforms, okay, and the social reform as well. और इंडिया यहाँ जो है इकोनॉमिक और सोशल जो है डेवलपमेंट पे, खास करके ह्यूमन डेवलपमेंट के, उनके लाइफ स्टाइल के जो है आपके डेवलपमेंट में, लिविंग स्टाइल के डेवलपमेंट में के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे प्लान्स को कहीं ना कहीं लॉन्च किया। और उनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव फोकस हो गया जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ओके, तो इसके लिए जो हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई। एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने जैसे कहा जो सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, डिफरेंट जो है एग्रीकल्चर एलाइड जो है आपके सेक्टर्स वो इमर्ज करते हैं इंडिया में।
और जितने भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल अप्रोच थे, IRDP हो या फिर जो अदर जो है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम्स हो, वो कंटिन्यू रहा, कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहे यहाँ पे। ओके, और ये सारे जो है कंटिन्यू रहे और इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स का जो है रोल बढ़ने लगा। ओके, पब्लिक सेक्टर कहीं ना कहीं वो लिबर्टी प्रोवाइड करवाने लगी और प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के कोऑपरेशन से जो है इंडिया का डेवलपमेंट का ग्राफ वो तेज़ी से बढ़ने लगा। और यू कैन से दैट 8th प्लान इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन हिस्ट्री। ओके, अब 9th प्लान की अगर हम बात करते हैं और जो मीन्स 1997 टू 2002, तो यह जो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं 9th प्लान की और 10th प्लान की, तो यह जो है एक सोशल जस्टिस स्ट्रैटी है, स्ट्रैटी फॉर ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। ओके, इसे अडॉप्ट किया इंडिया ने और कई सारे सोशल रिफॉर्म्स के, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के डिसीजंस लिए गए। ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के डिसीजन लिए गए यहाँ पे। ओके, लाइक कि MRTP एक्ट को जो है यहाँ जो है कहीं ना कहीं जो है जो MRTP एक्ट 1969 में लाया गया था और जो इकोनॉमिक मोनोपोलीज़ को वो MRTP एक्ट के थ्रू इकोनॉमिक मोनोपोलीज़ को एक इलीगल प्रोसेस बताया गया था, तो वहीं पे जो है फिर से कहीं ना कहीं उसमें लिबर्टी मिली, MRTP एक्ट को में वहाँ पे फिर से संशोधन किया गया। ओके, इसी तरह सेज का कॉन्सेप्ट आया, and this is means one of the regional development approach as well, SAGE, special economic zones, और इसके थ्रू जो है कंट्री के कुछ मीन्स पोर्शंस को, कुछ रीजन्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है उसे कहीं ना कहीं रिजर्व रख लिया गया और वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को लिबर्टी दी गई। ओके, और ये किया गया था, सेज का कॉन्सेप्ट आया था टू जस्ट बूस्ट अप द एक्सपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट्स। ओके, तो यहाँ जो है इस तरह से जो है सेज का कॉन्सेप्ट आया, तो ऐसे कई सारे डिसीजंस लिए गए और इसी तरह जो है एजुकेशन सेक्टर में जो है आपके कई सारे पॉलिसीज़ बनाए गए। दैन जो है एजुकेशन को कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन राइट का प्रोविज़न आया। ओके, जो कि मैंडेटरी की गई, जो है आपके एलिमेंट्री एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने की। तो सिमिलरली जो है आपका जो 10th और 11th प्लान रहा, तो उसमें न्यूट्रिशन जो है आपका लेवल उसे इम्प्रूव करने के लिए, एसेस करने के लिए रूरल एरियाज़ में या फिर जो है स्लम्स में उस तरह के प्रोविजंस आए। तो एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना स्टार्ट करती, और जो एक जेंडर इनइक्वलिटीज़, जेंडर गैप था, ओके, सोशल गैप थे और एक्सक्लूजन, एक सोशल एक्सक्लूजन जो एक मास स्केल पे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था, इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो आफ्टर 8th प्लान यू कैन सी दैट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन ओके टेकन बाय द प्लानिंग कमीशन। उसी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 8th 5 प्लान में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी जो आप देखिए जो 33 मीन्स 1/3 जो है आपके सीट्स जो है इवन कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन में हो या नगर पालिका, नगर निगम के इलेक्शंस में, वहाँ फीमेल के लिए रिजर्व रखा गया। तो ये सारे एफर्ट्स जो हैं आपके कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो है लिए गए। वैसे तो हम वुमेन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो आपको 6th प्लान में ही जो है आपका 1980s में ही वो एक तरह से फॉर्म किया गया था इंडिया में, और उसके बाद से लेकिन जो है मेजर ड्रास्टिक चेंज जो देखने को मिला वो मिला मीन्स 8th 5 प्लान से, जहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन का लेवल बढ़ा। तो यह भी एक स्ट्रैटी थे जो थी पार्टिसिपेटरी जो आपका स्ट्रैटी, जहाँ पे कि पंचायत लेवल पे मीन्स माइक्रो लेवल के जो है पॉपुलेशन को भी ये राइट दिया गया जो वो नेशनल डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम्स में वो पार्टिसिपेट कर पाए। ओके, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह के रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं इंडिया के डेवलपमेंटल जो ग्रोथ था उसमें एक एक्सेलरेट किया कहीं ना कहीं। ओके, तो उसके बाद जो फाइनली अब हम मूव करते हैं तो आप 2005-6 में एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो प्रोग्राम मीन्स मनरेगा, मैंने कहा जो इसका बेस जो है मीन्स रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो 6th 5 प्लान में लॉन्च हुआ था, कहीं ना कहीं वहीं पे था। वहाँ भी 100 डेज़ का जो है मीन्स वर्क्स के ओके एम्प्लॉयमेंट की जो है गारंटी दी गई थी, और मनरेगा में भी कहीं ना कहीं वही गारंटीड स्कीम ही है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है, और वर्ल्ड का सबसे जो है एक्सटेंसिव लार्ज प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट ओके गारंटी स्कीम से रिलेटेड। लेकिन बात यह है जो मुझे जहाँ तक लगता है जो शायद ये वर्ल्ड का सबसे अधिक जो है सबसे अधिक करप्शन भी इस प्रोग्राम में हुई होगी। ओके, क्योंकि ये
मेरा खुद का ये रिसर्च कहता है, जो मनरेगा में एक मास स्केल पे कहीं ना कहीं करप्शन, जो हिडन करप्शन है, और कई जगह हिडन नहीं बल्कि ये प्रूव्ड भी है, जो किस तरह से यहाँ के चाहे वो प्रोग्रामिंग ऑफिसर्स हो या फिर एक क्लर्क हो या अकाउंटेंट हो, वो जो है अपनी इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह से इम्प्रूव कर लिया है विद इन 10 ईयर्स और 5 ईयर्स। लेकिन वहीं जो है हम देखते हैं तो जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनके इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत अधिक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से हम दूसरी तरफ हम मनरेगा के जो सब्जेक्ट्स हैं, वर्किंग सब्जेक्ट्स, उसमें भी आप बहुत सारे लूप होल्स पाएंगे। लाइक कि अगर मनरेगा कहीं रिपोर्ट कह रही है दैट वी हैव प्लांटेड और इन दिस रीजन मीन्स 50,000 ऑफ प्लांट्स वी हैव प्लांटेड इन दिस रीजन। ओके, और जब आप जाएंगे मॉनिटर करने के लिए तो वहाँ आप पाओगे जो 1000 प्लांट्स भी ना मिले। सिमिलरली कहीं भी अगर पॉन्ड के डेवलपमेंट की बात चल रही है या रेजुनेशन की बात चल रही है तो वहाँ आप जब जाओगे ग्राउंड लेवल पे तो आपको वो जो पुराने पॉन्ड्स हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज़ हैं, वो आपको उन्हीं को कहीं ना कहीं जो है मार्क करके और फिर बता देते हैं। तो इस तरह के कई सारे जो है कई लेवल्स पे मनरेगा के जो है आपके करप्शंस देखने को मिलेंगे। तो मेन प्रॉब्लम इंडिया में यही है किसी भी फाइबर प्लान मीन्स प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ के थ्रू, that poor implementation and high level of corruption। ओके, तो इसकी तो हम बाद में बात करेंगे सारी प्रॉब्लम्स की और के जो रूट्स हैं, कॉजेज हैं उनकी। तो यहाँ जो है फिर फाइनली हम जब मूव करते हैं 11th and 12th फाइव प्लान की तरफ, then here India have adopted okay sustainable development approach for regional development, for reducing the regional imbalances। और इस अप्रोच के थ्रू मीन्स रैपिड ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच के थ्रू इंडियन प्लानिंग कमीशन ने इंडिया में जो आपके जो डेवलपमेंट थी उसको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी, जो जिस तरह से जो है आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के कारण ये बढ़ता चला जा रहा है दिन से दिन, तो कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करने के लिए एंड दे जस्ट स्टार्टेड टू इन बिलीविंग दैट environment is an integral part of our life, and that's why it is very important to conserve our environment or surrounding, okay, nature for our own development। And then they started, means Planning Commission of India started to adopt such kind of strategy at an intensive okay rate। तो इस तरह से जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ की हमने बात किया, जो किस तरह से जो है आपका फर्स्ट 5 प्लान से लेकर और 12th 5 प्लान तक जो प्लानिंग कमीशन ने इंडिया के डेवलपमेंट और इसके जो है ह्यूज रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए इन सारे स्ट्रैटेजीज़ को, इन सारे अप्रोचेज़ को, और जो मेजर हमने प्रोग्राम्स को की बात कही, इन सारे एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, तो इन सारे प्रोग्राम्स के थ्रू किस तरह से इंडिया के रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए एफर्ट किया। बट दूसरी तरफ हमने जो बात कही, जो इट इज़ वेरी मीन्स प्रॉब्लमेटिक इशू दैट इवन आफ्टर 70 years of our journey after independence, okay, we can't able to achieve our target or few important targets like poverty alleviation or employment generation, okay, land reform, okay, so and all these. So these were the basic requirements of India since after independence, okay, but unfortunately even after spending a lot of okay money or huge amount of money, okay, even after spending a lot of time or energy, we are unable to achieve our those basic requirements or targets, okay। Now you can analyze all these efforts, strategies, okay, at your own level, how you perceive that what were the roles or of planning commission or even of citizens as well, okay, what where are the roles, means our roles, and how we are just doing to how we are doing our better towards the country's development, towards our state or regions development, okay, are we doing this means doing in proper ways, okay, are we just taking seriously to all these strategies and efforts of government, or are we cooperating properly to the government or other agencies, okay, for the regional development or for the country's development. So
We have to think on all these points very carefully, and then we have to make a critical analysis of all these efforts. So it's a request to you all that please do a critical analysis of all these efforts, including your efforts, what you are doing, what you did for the national development. Okay, so thank you so much. We will talk in our next lecture about the main root problems or causes of behind the failureness of the major programs or strategies adopted by Planning Commission of India. Okay, so till then, thank you so much and take care.